Assalamu alaikum and good morning everyone. Hope you all are fine. This is question number 3. Solve page 126 and 127 by yourself on book. Okay boys, this is a comprehension. Finds answers of the following questions from the letter. हमने लेटर पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 टेकिंग अ टूर ऑफ लाहौर. आपने ये क्वेश्चन पढ़ने हैं और इनके आंसर फाइंड आउट करने हैं. And then you will write down some of the question on your notebook. Like you will write down first question, third, 4 and 6 on your notebook. Second और fourth, ये second और fifth question आप ना करें. Okay, let's see first question. Why do you think Yusuf has to write a letter to Jamal? He has to write a letter to Jamal to share his experience with the trip that he has recently experienced. He has to write a letter to Jamal to share the experience of Lahore trip with Jamal. Look at this. You will find out the answer of this question. Write on your book. You may write down some of the question on your notebook for comprehension practice, because जब आपको पेपर में comprehension आता है तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं. सो आप इसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं लाइक फर्स्ट, थर्ड, 4 एंड 6 क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक के ऊपर भी राइट डाउन करेंगे विद क्वेश्चन एंड आंसर. लुक एट दिस थर्ड क्वेश्चन. व्हाट एल्स डिड यूसुफ सी एज ही स्टूड एट बादशाही मस्जिद? वेल, ही सॉ आलमगिरी गेट ऑफ लाहौर फोर्ट व्हेन ही स्टूड एट बादशाही मस्जिद. नेम द आइटम्स अब्बू यूसुफ एंड मीना एट एट फूड स्ट्रीट. वेल, दे एट देयर चिकन कड़ाही, दाल, lassi and kheer. Okay. Last question is, what was special about the Mall Road? Well, it was built by British and was center of activity during Pakistani early days. Now come towards vocabulary. Let's learn some new words. Put the right word from the passage in front of its meaning. A statue, building or structure that is of historical interest. आपने गैस करना है कि इसको क्या कहते हैं. So, a statue, building or structure that is of historical interest is called monument. You will write here monument. The final location of a journey. Final location of a journey is destination. So, you will write down destination over here at the second number. A thin tower that is a part of a masjid, that is called minaret. मीनार कहते हैं जो थिन पार्ट होता है मस्जिद का. पीस एंड ऑर्डर. पीस एंड ऑर्डर इज हार्मनी. टू बी अनईजी एंड इन मोशन. रेस्टलेसनेस यानी बेचैन होना, बेआराम होना, रेस्टलेसनेस. वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिटेल्ड, that is called intricate. Hopefully you have understood all these statements and you will write down in front of these words of these statements. Okay, let's move towards our next concept, grammar. Tenses, the simple tense. In this chapter you see how Yusuf is writing a letter to Jamal telling him about an amazing time he had last week. Tenses are forms of a verb that show you the time of an action. There are 3 simple tenses. Let's look at them below. Okay, we have students 3 tenses. हमारे पास 3 tenses हैं, यानी कि the present tense, मौजूदा ज़माना. The present tense of a verb shows that the action happens regularly. Present tense ये शो करता है कि जो काम है, action है, वो regularly यानी बाकायदगी से होता है. Look at these 2 examples. Yusuf and Meena go to school. We live outside Lahore. These are the example of present tense. यानी ये मौजूदा ज़माने की examples यहाँ पे दिए गए हैं. इसमें ऐसे काम हैं जो कि regular basis पे होते हैं. Now move towards the past tense. Past mean गुजरा हुआ. Tense mean ज़माना, यानी ऐसा वक्त जो गुजर चुका है, गुजरा हुआ ज़माना. The past tense of a verb shows that the action has happened in the past. Past tense ये शो करता है जो काम है वो past में यानी कि
गुजरे हुए वक्त में हो चुका है, यानी ऐसा काम जो हम कर चुके हैं। जैसे कि हमने कल चैप्टर नंबर 10 की रीडिंग कर ली थी, तो दैट इज पास्ट टेंस। और आज मौजूदा ज़माने में हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेजेंट टेंस और ये टेंसेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो दिस इज प्रेजेंट, और रीडिंग हमने जो की थी दैट इज पास्ट। लुक एट दीज 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट टेंस। यूसुफ एंड मीना वेंट टू स्कूल। हेयर वेंट इज शोइंग पास्ट टेंस। ये हमें वर्ब से पता चलता है, एक्शन जो हो रहा है ये हमें ये शो करता है। एक्शन से हम गेस कर सकते हैं कि जो एक्शन है ये प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में। सो वेंट इज अ सेकंड फॉर्म हियर, ये पास्ट पार्टिसिपल है। सो वी विल गेस थ्रू द एक्शन दैट द वर्क इज हैपेंड इन पास्ट। वी लिव्ड आउटसाइड लाहौर। Here lived is showing past tense. Now move towards the future tense. Future mean आने वाला, मुस्तकबिल, आने वाला जो हमारा कल है। जैसे कि हम आने वाले कल में नेक्स्ट फर्दर जो है वो हम जिस तरह हम नेक्स्ट टेंसेस करेंगे या जो भी काम हम करेंगे, जो हमने कल काम करना है दैट इज आर फ्यूचर टेंस। या आने वाले वक्त में हम जो काम करेंगे दैट इज कॉल्ड फ्यूचर। एंड टेंस मीन जमाना, वक्त, यानी ऐसा काम जो आने वाले वक्त में किया जाएगा। द फ्यूचर टेंस ऑफ अ वर्ब शोज दैट द एक्शन विल हैपन। फ्यूचर टेंस ये शो करता है कि जो एक्शन है, जो काम है, अभी ये होगा। लेट्स लुक एट दीज 2 एग्जाम्पल। यूसुफ एंड मीना विल गो टू स्कूल। हेयर विल हेल्पिंग वर्ब इज शोइंग दैट द एक्शन विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, यानी एक्शन जो है वो भी फ्यूचर में होगा। दे विल गो टू स्कूल, यानी वो स्कूल जाएंगे। सो हेयर इज फ्यूचर टेंस। वी विल लिव आउटसाइड लाहौर, हम लाहौर से बाहर रहेंगे। विल लिव ये भी हमें शो कर रहा है कि ये फ्यूचर टेंस है। नाउ क्लियर योर कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सिंपल टेंसेस, एंड यू हैव टू सॉल्व दीज। यू विल राइट डाउन whether the sentence is present, past or future over here. So let's see first one. I saw my friend at the market. Here saw is showing past tense, यानी मैंने अपने फ्रेंड को मार्केट में देखा, मार्केट में देखा। saw is showing here past tense. आपने गेस करना है कि ये जो बाकी सेंटेंसेस हैं इसके अंदर जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो है, ये किस टेंस को शो कर रहे हैं। लेट्स लुक एट दिस सेकंड सेंटेंस। आयशा फीड्स हर 3 cats. यहाँ पे फीड्स है, दिस फीड्स इज शोइंग, फीड इज अ वर्ब और एस का एडिशन यहाँ पे शो कर रहा है, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि एस और एस का एडिशन हम प्रेजेंट टेंसेस में करते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में किया जाता है विद सिंगुलर सब्जेक्ट और प्रोनाउंस। सो यहाँ पे फीड्स जो है इज शोइंग प्रेजेंट टेंस। सो दिस इज प्रेजेंट टेंस। माई ब्रदर विल प्ले क्रिकेट टुमारो। हेयर विल प्ले इज शोइंग फ्यूचर टेंस। आई लव टू ड्रॉ, आप इसको गेस करेंगे कि ये कौन सा टेंस है। द चिल्ड्रन सेलिब्रेटेड ईद। हेयर सेलिब्रेटेड यहाँ पे पास्ट टेंस यूज हो रहा है। सो दिस इज पास्ट टेंस। ही विल पेंट अ पिक्चर सून। विल पेंट ये आप गेस करेंगे किसको शो कर रहा है। दे विल कम टू आवर हाउस। आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। आपने इनको गेस करना है और यहाँ पे इनके सामने लिख देना है whether the sentence is past, present or future. Do your work neat and clean. Take great care of yourself. Have a blessed day. Allah Hafiz.